Good morning, class. I hope all of you are doing well. आज जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा है उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है. सो देयर आर 3 forms of hypothesis. And what are the 3 forms? The 3 forms are hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law, and hypothesis concerning collocation. So these are the 3 forms of hypothesis. Okay. Now ये जो hypothesis concerning agent है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग hypothesis बनाते हैं to find out the agent. Who is the agent? Agent is the person who has committed the crime or who has done the action. Okay. So to find out the agent, जब हम लोग hypothesis बनाएंगे, then that hypothesis is called hypothesis concerning agent. दूसरा hypothesis concerning plan. हाइपोथेसिस कंसर्निंग प्लान, जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे टू नो व्हाट वाज द प्लान अकॉर्डिंग टू विच द इवेंट हैज टेकन प्लेस और अकॉर्डिंग टू विच द पर्सन हैज कमिटेड दैट थिंग. ओके. अगर कोई केस हुआ तो फिर कोई जैसे क्राइम हुआ सपोज, तो फिर उस क्राइम को कैसे अंजाम दिया गया. What was the plan of the agent to commit that crime? So that plan, to find out that plan when we will make hypothesis, then that is called hypothesis concerning plan. Now the next one is hypothesis concerning collocation. Collocation का मतलब है arrangement. तो सिर्फ plan से तो काम नहीं चलेगा. Okay? उसको एक अरेंजमेंट भी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू विच अरेंजमेंट ओके द सर्कमस्टेंसेस हैज टेकन प्लेस, टू फाइंड आउट दैट अरेंजमेंट व्हेन वी विल मेक हाइपोथेसिस, देन दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस कंसर्निंग collocation. So these are the 3 forms of hypothesis. Okay. So what are the 3 forms of hypothesis? Hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law, and hypothesis concerning collocation. Okay. So अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले, सपोज फॉर एग्जाम्पल से ओके लेट अस टेक आवर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस. अगर किसी के घर में सपोज चोरी हुआ है, ओके, सपोज दिस इज द क्राइम. सो इस क्राइम को इसको सॉल्व करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किन किन हाइपोथेसिस से गुजरना पड़ेगा, कौन से हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा. नाउ सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम, जिसने चोरी किया है. द थीफ. हु इज द थीफ? ओके. द थीफ इज द एजेंट हियर. टू फाइंड आउट द एजेंट वी हैव टू मेक hypothesis. Okay. So that is called hypothesis concerning agent. Agent मतलब the thief who has committed the crime. जिसने चोरी किया है, उसको खोजने के लिए जब हम लोग hypothesis बनाएंगे, so that will be the hypothesis concerning agent. Now जब उसने उस चोर ने जब चोरी किया होगा उस घर में, तब उसका एक प्लान होगा, राइट. विदाउट प्लान तो ही विल नॉट डू दैट. सो उस प्लान को, उसके दिमाग में जो प्लान था, उस प्लान को जब हम लोग खोजने के लिए हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस कंसर्निंग प्लान. ओके. और हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ. नाउ सिर्फ प्लान से या फिर सिर्फ लॉ से वो क्राइम को अंजाम नहीं दिया जा सकता. उसके लिए अरेंजमेंट भी चाहिए. तो जिसने भी ये रॉबरी किया होगा, उसने जरूर कुछ अरेंजमेंट भी किया होगा फॉर दैट रॉबरी. सो दैट अरेंजमेंट, टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट अरेंजमेंट, when we will make hypothesis, then that is called hypothesis concerning collocation. So these are the 3 forms of
hypothesis. ठीक है. Now what is a hypothesis? Let us begin from the first topic of the chapter. What is a hypothesis? A hypothesis is a provisional supposition. It is a tentative suggestion made for explaining fact. Okay. There are 4 characteristics of hypothesis. सबसे पहला characteristics, hypothesis is an attempt at explaining fact. दूसरा, hypothesis is of provisional character. तीसरा, hypothesis is an act of rational mind. Okay. और चौथा, hypothesis arrange the facts in a systematic way so that we can easily reach our goal to find out the cause of the phenomena. So these are the 4 characteristics of hypothesis. Now after that, what is hypothesis and what are the characteristics of hypothesis, we came to the stages of hypothesis. So there are 4 stages of hypothesis. सबसे पहला observation. Okay, as I have already tell to you that observation is the first stage of any investigation. Observation से ही हमें हमेशा शुरू करना पड़ता है. तो so the first stage of hypothesis is observation. The second stage is formation of hypothesis. The third stage is deduction and the fourth stage is verification. सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन हमें मटेरियल सप्लाई करता है, उस मटेरियल से हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस बना के हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें से हम लोग चूज करते हैं द इम्पोर्टेंट एंड द रेलिवेंट वन, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन. एंड देन जो हम लोगों ने चूज किया है हाइपोथेसिस, उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन. सो दिस आर द 4 स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस. Now the uses of hypothesis, there are 4 uses. सबसे पहला use, hypothesis is an aid to explain the fact or the phenomena under investigation. सबसे पहला यूज है कि हाइपोथेसिस हमेशा उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है. दूसरा यूज ये है कि हाइपोथेसिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एड. हाइपोथेसिस हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ओके. सो तीसरा ये है कि हाइपोथेसिस हमेशा हर चीजों को अरेंज करता है ताकि हम लोग इजीली उसको समझ पाए. सो दिस इज द थर्ड यूज. एंड चौथा यूज ये है कि हाइपोथेसिस जो है इट इज प्रोविजनल इन कैरेक्टर. सो हम लोग जब भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज प्रोविजनल इन कैरेक्टर. दो इट इज प्रोविजनल इन character, but we have to start from hypothesis only. So hypothesis is the starting point of any investigation. Observation and experiment कुछ भी possible नहीं है without making hypothesis. So जो हम लोगों को observation नहीं दे सकता है, जो हम लोगों को experiment नहीं दे सकता है, वो हम लोगों को hypothesis से मिल सकता है. So this is the 4th use of hypothesis. और आज का जो टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, these are the forms of hypothesis. So there are 3 forms of hypothesis: hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law, and hypothesis concerning collocation. So these are the 3 forms of hypothesis. तो so far हम लोगों ने कितना टॉपिक पढ़ा हाइपोथेसिस का. हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज हाइपोथेसिस, फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस, और आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस. ओके. इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस. Okay, so hypothesis is a very interesting chapter and it is a very short chapter also. जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, हाइपोथेसिस में there are only 7 topics जो हम लोगों को पढ़ना है and the topics are also very short, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है. वो सारे टॉपिक्स ही शॉर्ट टॉपिक्स हैं. तो अब तक मैंने आप लोगों को जो भी समझाया है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. एंड फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक के ऊपर, हाइपोथेसिस का किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर
जो हम लोगों का लाइव क्लास होता है उसमें भी पूछ सकते हैं। और मेरा ये सजेशन होगा आप सबको कि जब भी मैं लेक्चर दूँ आप लोग प्लीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, जिससे आप लोगों को भी कन्वीनियंट होगा। बाद में सिर्फ पॉइंट्स देख लेने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि लेक्चर में मैंने क्या क्या समझाया है। ओके, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, देन वी विल डिस्कस इन आवर टुमारोज लाइव क्लास। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।